and welcome, my dear friends. Today we will talk about relation between atomic radius and length of edge or side in a cubic unit cell. As you know, जो हमारे पास cubic unit cell है, it has got three lattices. One is simple lattice, simple cubic lattice. नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड, जिसे हम बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. दिस इज सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव. एंड नेक्स्ट इज द बॉडी सेंटर्ड लैटिस, body centered cubic lattice, BCC. So these are the three unit cells in case of a cubic unit cell, cubic crystal, and in each case we will be finding the relation between atomic radius and the length of edge or side. Now let's take first of all simple cubic lattice. So in simple cube we have like this. It has particles only at corners, so we can show them by means of red color. So it has particles only at the corners. That's called as a primitive lattice or primitive cubic unit cell. अब जो इसका side है, ये वाला side है, this is the length of edge. We represent it by means of A. और जो ये पार्टिकल यहाँ मैंने डाला है, पार्टिकल, इसका रेडियस सपोज है रेडियस ऑफ एटम. इसका रेडियस है सपोज R इज द रेडियस ऑफ दिस एटम. हमें रिलेशन फाइंड करनी है बिटवीन दिस रेडियस एंड द लेंथ ऑफ एज. सो हाउ कैन वी फाइंड इज, one more point I should add here is, so there's one more term that's called as distance of closest approach. Distance of closest approach, or we can say interionic distance, or we can say it is the nearest neighboring distance. Nearest neighboring distance. सो तीन नाम है यहाँ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या इंटरआयनिक डिस्टेंस, या बोल सकते हैं नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस. ये क्या होती है, अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ टच कर रहा है, then the distance between the center of these particles is basically known as nearest neighboring distance. हम D से डिनोट करेंगे, या इंटरआयनिक डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. सो हमारे पास अगर दो पार्टिकल्स हैं, उन दरमियान डिस्टेंस जो है एक पार्टिकल के सेंटर से दूसरे पार्टिकल के सेंटर तक जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज D. D स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इंटरआयनिक डिस्टेंस और नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस. इसके साथ भी हम रिलेशन जो है वो बनाए रखेंगे. अब देखिए आप, नाउ इन केस ऑफ प्रिमिटिव लैटिस, जो ये पार्टिकल कॉर्नर पे हैं, दे आर एक्चुअली टचिंग ईच अदर. सो अगर आप ये फेस लेंगे, ये वाला फेस अगर आप लेंगे, सो आई विल ज़ूम इट ओवर हियर, दिस इज लाइक दिस. इस फेस में जो ये पार्टिकल्स हैं ये टच कर रहे हैं एक दूसरे से. सो दिस इज वन पार्टिकल, दिस इज द नेक्स्ट पार्टिकल टचिंग इट, this is the next particle touching that sphere, and this is the next particle touching both these spheres. So actual picture of this primitive lattice is like this. So जो ये particle यहाँ पे है, it seems that they don't touch each other, but actually they do. The picture is like this. So, and this is basically the length of edge, that's A, and now radius जो sphere का है हम लोगों ने वो ले लिया है R. So obviously in simple cube, यहाँ तक यहाँ distance जो है that is 2R, means 2R will be equal to A. This implies R जो आपका है R, that is the radius of sphere, that will be equal to A divided by 2. This is the relation between the length of edge and the radius of that atom in case of simple cubic crystal, or we can say simple cubic unit cell. One more point is, जो यहाँ पे R है that's equal to D. जो यहाँ पे A है, length of A, so here A is equal to D, because D is the distance of closest approach or interionic distance or nearest neighboring distance. वो क्या होता है,
दो पार्टिकल्स जब टच करते हैं उनके सेंटर से जो डिस्टेंस बनती है उसका नाम है d, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. एंड हियर आल्सो जब ये पार्टिकल टच कर रहे हैं ये लेंथ ऑफ h भी बन गया और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी बन गया, मतलब a इज इक्वल टू d. इट मीन्स d इज आल्सो इक्वल टू a/2, r इज इक्वल टू a/2 और d/2. यू कैन फाइंड द रिलेशन फॉर बोथ length of edge and radius or distance of closest approach and radius. This was for simple cubic unit cell. Next is number B. हमारे पास है face centered FCC unit cell. जो आपका ये FCC unit cell है ये basically ऐसे होती है. You have a cube. So in this cube you are having particles at corners. You are having particles at corners and at the center of each face. मतलब ये अगर आपका फेस है, ये पहले वाला फेस, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल, नीचे पार्टिकल, साइड में पार्टिकल, पीछे पार्टिकल और आगे पार्टिकल. ये पार्टिकल्स फेसेस पे है. दिस इज द बैक पॉइंट एंड दिस इज द फ्रंट पॉइंट. शाबाश. अब देखिए आप, अगर आप इस पार्टिकल को इसको जूम करेंगे, इस वाले जो आगे वाला ये है फेस है, इसको जूम करेंगे, सो पिक्चर इज एक्चुअली लाइक दिस. सो यू हैव अ क्यूब ओवर हियर, द फ्रंट फेस, और जो बीच में फेस पे पार्टिकल है लाइक दिस. ये जो पार्टिकल है दिस टचस विद द पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स. Let me make it a bigger one. मतलब ये कि जो ये पार्टिकल्स है, these particles which are at corners do not touch each other now, but they are touching, all these are touching to the central face atom. This is called as face-centered cubic unit cell. So face-centered cubic unit cell में क्या है, मैं फिर से बना रहा हूं. ये एक पार्टिकल यहां पे है, ये बीच वाला पार्टिकल है, ये जो स्क्वायर आपका बना ये फ्रंट वाला फेस है. तो पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स डू नॉट टच ईच अदर बट दे ऑल टच विद द फेस एटम. सो ये जो है यहां से यहां तक डिस्टेंस, दिस इज द a डिस्टेंस, लेंथ ऑफ h, बिकॉज हमने लेंथ ऑफ h पहले ही मान ली है a. नाउ if the radius of sphere is r, you are going to find the relation between r and a. So how can you find that? आप एक right angular triangle लेंगे यहाँ. You can take right angular triangle, that is this. I'll show it here. ये जो है अगर आप इस सेंटर से इस डिस्टेंस डालेंगे, एंगल डायगोनल डालेंगे, तो डायगोनल डालने के बाद में क्या हुआ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. अगर ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट B है तो ये पॉइंट C है. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन right angular triangle ABC, we can apply Pythagoras theorem, means AC square will be equal to AB square plus BC square. This implies AC is basically this. अब ये कितना डिस्टेंस है, दिस इज R, ये डिस्टेंस R है, ये पूरा स्फीयर आएगा, इसका 2R आएगा मतलब डायमीटर, ये भी R आएगा मतलब ये 4R आएगा. Before we will move to 4R, let me see, AC will be equal to, अब ए बी किसके बराबर है, लेंथ ऑफ एच, दैट्स ए स्क्वायर, प्लस बी सी किसके बराबर है, लेंथ ऑफ एच, दैट्स अगेन ए, बिकॉज ए क्यूब है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर. अब ए सी किसके बराबर आएगा, √2 इंटू ए. सो वी कैन राइट दिस इंप्लाइज ए सी आपके बराबर आएगा √2 इंटू ए. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये हमेशा आप याद रखिएगा, जो बॉडी जो डायगोनल होता है FCC में, जो डायगोनल होता है उसका जो लेंथ होता है दैट्स इक्वल टू √2 टाइम्स लेंथ ऑफ h. AC किसके बराबर है, अब 4 टाइम्स r, बिकॉज A एंड C इक्वल टू r प्लस 2r प्लस r, दैट इज 4r. सो वी कैन राइट ओवर हियर, बट AC is equal to 4 times r. This implies 4r will be equal to √2 into a. This implies r will be equal to √2 by 4 into a. This is the relation between radius, atomic radius and the length of edge. One more point I should add here is, अगर आप यहाँ पे देखेंगे,
अगर आप यहां पे देखेंगे AC इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स A, बट AC जो है AC और इस यहां से यहां जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, एक सेंटर ये है, दूसरे सेंटर ये है, इन दरमियान डिस्टेंस जो है दिस इज कॉल्ड एज D, बिकॉज जब दो सफियर्स टच करते हैं, center the distance from the centers of each sphere is basically D. That's called the distance of closest approach, or we can say nearest neighbor distance. और यहां से यहां तक भी D ही आएगा, मतलब यहां ये कि AC is equal to 2 times D. So AC is equal to 2 times D. इसका मतलब ये हुआ, आप लिख सकते हैं ऐसे also AC is equal to 2 times D, which implies 2 times D will be equal to root 2 into A. This implies D will be equal to root 2 by 2 into A. This is the relation between the distance of closest approach and the length of edge. I hope you understand it. Next हमारे पास है number 3, that is BCC. So BCC lattice कैसे है? हमारे पास एक क्यूब है, it has particles at corners. So corners पे पार्टिकल है और एक पार्टिकल जो है वो सेंटर में है, सेंटर के बीच में पार्टिकल है, मतलब यहां पार्टिकल है। ठीक, अब लेट अस जॉइन देम। ये जो बॉडी, ये जो डायगोनल है यहां थ्रू, ये बॉडी डायगोनल, दिस इज द बॉडी डायगोनल। सो A एंड D, अगर हम ये B लिखेंगे, ये लिखेंगे C, ये एक और डायगोनल बनेगा, एंड दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस फेस, this is the diagonal, BD is the diagonal of this face, and A and D is the body diagonal which moves through the center. अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आप लेंगे BCD, this is right angled at C, अगर आप लेंगे ADC, this is right angled at B. अब आप लेंगे पहले, let's talk about BDC right angled triangle. So in right angled triangle BDC, मतलब BDC ये वाला, so hypotenuse is BD, length of edge is A, तो मतलब ये कि BD square will be equal to BC square plus DC square. BD square will be equal to BC square plus DC square. This is equal to A square plus A square because length of edge is this. ये है BD square here, sorry. So BD square will be equal to BC square plus DC square. That is this BD square will be equal to 2 times A square now. This implies आपका जो BD square निकला वो निकला 2A square. In right angle triangle, अगर आप right angle triangle लेंगे अब, in right angle triangle ADB, मतलब AD और B, ये वाला right angle triangle which is right angled at B, तो hypotenuse is AD, this is base, this is perpendicular. So we can write AD square will be equal to BD square plus AB square. AD square will be equal to BD square plus AB square. AD square will be equal to BD is now equal to BD square, अभी निकाला 2A square. So 2A square plus AB is again A square. So that is 3A square. AD square. This implies जो आपका AD है, AD वो निकल करके आएगा √3 into A. हमेशा अब याद रखना चाहिए, जो बॉडी डायगोनल होता है AD, जो भी बॉडी डायगोनल होता है BCC में, जो भी बॉडी डायगोनल होता है BCC में, उसका जो लेंथ है दैट्स ऑलवेज इक्वल टू √3 टाइम्स A. ये हमेशा याद रखिएगा. नाउ व्हाट इज AD इक्वल टू? अब देखिए जो ये AD है, AD में 3 सफियर्स आते हैं, एक तो ये कॉर्नर वाला सफियर, दूसरा ये कॉर्नर वाला सफियर, तीसरा आता है बीच में जो बॉडी में सफियर है. सो दे आर टचिंग ईच अदर, मीन्स दैट ये ऐसे है, एक सफियर ऐसे कॉर्नर वाला, ये A वाला सफियर, ये दूसरा मिडल वाला सफियर, ये तीसरा सफियर जो ये वाला है, मतलब ये पॉइंट D है यहाँ, दिस इज द पॉइंट A हियर, एंड वंस यू जॉइन देम दिस बिकम्स AD. एंड जो ये बॉडी सफियर है, बॉडी सफियर, तो ये अगर R है, ये अगर आपका R है तो ये कितना बनेगा 2 टाइम्स R, तो ये कितना बनेगा अगेन R, ये हो गया 4R, मतलब आपका जो AD है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स R. और वी कैन से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज D,
यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट्स अगेन d, मतलब 4r इज इक्वल टू 2 टाइम्स d. सो आप AD 4r यहां पे लिख सकते हैं. सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ AD हियर. सो implies 4r will be equal to root 3 into a. This implies r will be equal to root 3a by 4. This is the relation between the atomic radius and length of edge in case of BCC lattice, that is this. अगर आप d में कन्वर्ट करेंगे, d is equal to what? So 2 times d is equal to 4r. तो उस हिसाब से भी आप जो है ये निकाल सकते हैं. So AD is equal to 2 times d आप लिख सकते हैं. Also AD is equal to 2 times d. This implies 2 times d will be equal to under root of 3 into a, because आपने पुट यहाँ करा AD root 3 into a. AD के बदले 2 times d लिखा. d is the distance of closest approach. So this implies d will be equal to root 3 by 2 into a. This is the relation between the nearest neighboring distance as well as the length of edge. This is the distance relation between the radius of sphere and the length of edge. So this is all about how you calculate relation between the radius, atomic radius, and the length of edge or side of a cubic unit cell. And what do you mean by the distance of closest approach or interionic distance, or you can say the nearest neighboring distance. Now we will switch on to some numerical problems to illustrate it further. So let's talk about some numericals. Question number 1 हम लेंगे यहाँ. गोल्ड आपके पास है, एक क्रिस्टल है, एटॉमिक मास जो इसका है दैट इज इक्वल टू, सॉरी एटॉमिक मास नहीं, इट इज द एटॉमिक रेडियस गिवन. एटॉमिक रेडियस इसका दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 0.144 पिकोमीटर्स, नैनोमीटर्स. It crystallizes into FCC lattice. Find the length of edge. आपको length of edge निकालना है. So you know, in case of FCC, so R is equal to root 2 by 4 into a. आप देख सकते हैं यहाँ, ये आपको याद रखने हैं, ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं. सो इन केस ऑफ FCC आप लिख सकते हैं इट इज रूट 2 by 4 into a. So atomic radius is related to length of edge by means of root 2 by 4 into a. So put the value here. This implies आपका radius दिया हुआ है, आपको a निकालना है. So a will be equal to 4 times r divided by root 2. This is equal to 4 by root 2 into 0.144, and that is equal to 0.407 नैनोमीटर्स. जो a का, जो r का यूनिट होगा दैट इज नैनोमीटर्स, उसी हिसाब से जो है a का यूनिट निकलेगा दैट इज 0.04 नैनोमीटर्स. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इट. नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेंगे, विल टेक द क्वेश्चन नंबर 2. अल्युमिनियम जो है, अल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेस into CCP. CCP is basically FCC. With whose metallic radius is 125 picometers. Find length of edge. Find length of edge. So चूंकि ये फिर से है CCP means FCC, तो obviously for FCC radius is equal to under root of 2 by 4 into a. आपको a निकालना है. This implies a will be equal to 4 into r divided by root 2. So a will be equal to 4 by root 2 into r. R is basically 125. That upon calculation gives rise to 353.5 picometers. इस तरीके से जो है आप एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं या फिर लेंथ ऑफ एज निकाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन. क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखेंगे यहाँ. सो वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज आपके पास एक ज़ीनॉन क्रिस्टल है. यू आर हैविंग ए ज़ीनॉन क्रिस्टल दैट इज FCC. इसका लेंथ ऑफ एज आपको दिया हुआ है कितना, दैट इज 620 picometers. Find nearest
neighboring distance and length of edge. आपको दो चीजें यहां निकालनी है, वन इज लेंथ ऑफ एज, दूसरा है नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस. चूंकि एफसीसी लैटिस है आपको पता होना चाहिए, सो एफसीसी में जो आपका आर है दैट इज इक्वल टू √2/4 इंटू ए. अब इस वक्त आपको नियरेस्ट लेंथ ऑफ एज निकालना है, रेडियस इज गिवन, सॉरी रेडियस निकालना है, रेडियस यहां पे जो लेंथ ऑफ एज दिया हुआ है तो रेडियस निकालना है. इट इज नॉट लेंथ, इट इज रेडियस हियर, इट इज रेडियस ओवर हियर. सो आपको रेडियस ऑफ ज़ीनॉन एटम निकालना है और नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस निकालनी है. सो r इज इक्वल टू √2/4 इंटू ए, बिकॉज फॉर एफसीसी यू आर हैविंग दिस रिलेशन. नाउ आपको रेडियस निकालना है, आप निकाल सकते हैं, इट इज √2/4 इंटू ए के बदले आप लिख सकते हैं 620. अपॉन कैलकुलेशन यू कैन गेट टू नो दैट इट इज इक्वल टू 219.2 picometers. This is basically the radius. Now you are going to find the nearest neighboring distance. अब nearest neighboring distance कैसे निकालेंगे आप सीधे लिखेंगे फेस. आपका जो क्रिस्टल है in case of FCC जो फेस एटम है it touches with all the spheres at corner, but corner spheres do not touch each other. This is the face. Now यहाँ से जो यहाँ distance है that's called as D. अब देखिए अगर आपका रेडियस निकल करके आया है कितना 219.2, तो ये एक रेडियस आर है, ये दूसरा रेडियस आर है, तो d इज इक्वल 2 टाइम्स आर. क्लियरली जो है d जो है दैट्स इक्वल टू 2 टाइम्स आर. आप देख सकते हैं नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस क्या होता है, दो स्फीयर्स जब टच करते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट्स कॉल्ड एज d. d इज ऑलवेज इक्वल टू 2 टाइम्स आर. जब आपको r निकलेगा आपको d निकलेगा, तो दैट्स इक्वल टू 2 इंटू 219.2, that is approximately equal to 438.4 picometers. I hope you understand it. So we'll take one more question to illustrate it further. So the question is question number 5 हम लेंगे यहाँ. आपके पास cesium chloride crystal है, it is BCC है with cesium at center of crystal. Find interionic distance if A equal to length of edge is equal to 400 picometers. ये BCC लैटिस है. BCC लैटिस का माने ये है अगर आपके पास ये क्यूब है, if this is the cube, it has particles at corners and it has particles at center. ये सीजियम है at center, बाकी जो रेड वाले हैं ये क्लोराइड्स हैं. तो आपको क्या निकालना है, interionic distance. Interionic distance I told you is basically the distance of closest approach, or we can say the nearest neighboring distance. सीधी सी बात है, I told you earlier ये A है ये D है, जो यहाँ पे ये distance हुआ करती है ये वाले distance, they basically touch each other. These spheres basically touch each other. तो ये जो है ये स्फीयर और ये स्फीयर जो टच कर रहे हैं आपस में, तो D is equal to 2 times R. बिकॉज ये आपको हमेशा याद रखना है कि 2 टाइम्स r इज इक्वल टू d. सो जब r निकलेगा ऑब्वियसली आपको निकलेगा d. तो आप कैसे निकालेंगे, आप सीधे करेंगे एक बात, आप रेडियस निकालेंगे. आपको लेंथ ऑफ एज दिया हुआ है, यू नो फॉर BCC r इज इक्वल टू √3/4 इंटू a. सो दैट इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 4 इंटू a किसके बराबर है, दैट्स 400. ये जब सॉल्व करेंगे तो आपका r निकलेगा. तो ये जो सॉल्व करेंगे आप, R has come out to be that is equal to, it is equal to √3 into 100. ये आपका R निकला. जब R निकला obviously D निकलेगा. D किसके बराबर होता है, 2 times R. So D is equal to 2 into R. So that is equal to 2 into √3 into 100. That is 200 into √3. That comes out to be 346.4 picometers. इस तरीके से जो है आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं. सो हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आएगा या इंटराइनिक डिस्टेंस आपको बोला जाएगा निकालने के लिए, यू ऑलवेज राइट d इज इक्वल टू r. मतलब ये कि आपको r निकालना है. जब r निकलेगा उसके बाद
आपको इजीली डी निकलेगा। आर तब निकलेगा जब आपका लेंथ ऑफ एज दिया हुआ होगा। एक और प्रॉब्लम हम लेंगे, विल टेक वन मोर प्रॉब्लम। सपोज आपके पास एक इफ radius of atom is equal to 75 picometers, crystal है BCC, find edge length and distance of closest approach. Distance of closest approach. सीधी सी बात है, जब रेडियस दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ एज भी निकलेगा इजीली। तो पहली बात यह है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट एप्रोच ऑलवेज इक्वल टू 2 times r. दिस इंप्लाइज d विल बी इक्वल टू 2 times 75 एंड दैट्स इक्वल टू 2 5s are 10, 150 आ जाएगा ये पिकोमीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है आपको लेंथ ऑफ एज निकालना है। तो चूंकि बीसीसी लैटिस है, जब भी बीसीसी लैटिस होगा तो r इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 4 इंटू a. दिस इंप्लाइज a विल बी इक्वल टू 4 times r डिवाइड बाई √3. दिस इज इक्वल टू 4 by √3 into 75. Once you solve it, it comes out to be 173.2 picometers. इस तरीके से जो है आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इफ यू लाइक माई वीडियोज, please do not hesitate to share and subscribe my channel. Press the bell icon to get the latest updates. Till then, take good care of yourselves. Thank you very much.